Good evening, everyone. Good evening. How are you all doing? So far, so good. I'm so glad to be here this evening, celebrating with you all the joy of Christmas. आज शाम यहाँ पर आप सभी के साथ में जो हूँ और क्रिसमस सेलिब्रेट करने में मुझे खुशी हो रही है. So let's focus for a short while on God's word this evening. तो आइए प्रभु के वचन में चलते हैं आज की शाम. So, if you remember, last to last Sunday we focused on a particular theme, that is, we call it canticles. तो पिछले अगर याद होगा आपको तो हमने एक कैंटिकल्स जो है उस विषय पे जो है थोड़ा ध्यान दिया था. We meditated upon the song of Zacharias. तो वो जो गीत असल में जो गाए गए थे जो जकरिया ने जो गीत गाया था प्रभु के जन्म के समय. So we are going to focus for this evening तो आज की शाम जो है हम बात करेंगे Luke chapter 2 लूका के दूसरे अध्याय से from verse 25 to 35. तो लूका के दूसरे अध्याय से 25 से लेके 35 वचन तक. So before we go ahead, let's bow our heads and pray. तो आगे बढ़ने से पहले आइए प्रार्थना करें. Our Lord, our gracious Heavenly Father, we come before your throne. And Lord, this evening, as we remember how you have unfolded all those prophecies for hundreds of years that you have spoken through the prophets, in the advent of Christ, Lord, as we meditate upon those truths, speak to us this evening. And Lord, speak to us. We, your children, listen. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. So in Luke chapter 2 from verse 25, तो लूका के दूसरे अध्याय में 25 पंक्ति से शुरुआत करते हुए it talks about a man by the name Simeon. तो वो शिमोन नामक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे. It says, now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was righteous and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. तो शिमोन नामक का एक मनुष्य था और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था, इजराइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था. So it talks about what kind of a man he was. तो इसके बारे में बता रहा है कि किस तरह का मनुष्य था वो And what was he doing? वो क्या करता था. A kind of a man he was. वो जो व्यक्ति था, There are two things that are spoken about him. उसके बारे में दो विशेष बात कही. He was righteous कि वो धर्मी था and he was devout. और वो भक्त था परमेश्वर. He was living, and that's the same description given about Elizabeth and Zacharias. तो एलिजाबेथ और एलिशबा और जकरिया के बारे में भी यही कहा गया था. He was living a good life in the sight of God. तो परमेश्वर की नजर में ये एक अच्छा जीवन जी रहे थे. And he was devoted to God. और वो परमेश्वर का एक अच्छा भक्त था. And what was he doing? और वो क्या करता था? He was waiting. और वो इंतजार करता था. Waiting for the consolation of Israel. वो इस बात की बाट जो रहा था कि इजराइल को शांति मिलेगी. When we look at these 10 passages जब इन 10 पंक्तियों की ओर हम बढ़ेंगे from the life of Simeon, और शिमोन के जीवन की ओर से खास करके we learn three things. 3 बातें हमको जो है सीखने मिलेगी. So we will look at those three things. तो उन 3 चीजों के बारे में देखेंगे. First, Simeon was waiting.
कि शिमोन बाट जो रहा था, वो इंतजार कर रहा था, waiting for the consolation of Israel. वो इस बात की बाट जो रहा था कि इज़राइल को जो है शांति प्रदान होगी। What do we mean by consolation? और इसके बारे में मतलब क्या है इस शांति का? What we mean by consolation is that comfort. और उस शांति का मतलब ये है कि किसी को जो है आराम देना, धीरज दिलाना। For hundreds and hundreds of years, और ये 100 साल से, सदियों से मानो, when God redeemed His people, He जब- chose Israelites and delivered them from Egypt. परमेश्वर ने इन लोगों को चुना और इन्हें जो है मिस्र देश से छुटकारा देकर बाहर लेके आए। And he promised them a particular land, and he said, I am going to give that land to all of you. और उनसे वादा किया गया था एक जगह का, एक देश का, जो उन्हें दिया जाएगा। And then he carried them over there. और उन्हें वहां लेके गया वो। And then he said, as long as you obey my commandments, you will be blessed and you will eat the fruit of the land. जब तक तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, परमेश्वर उनसे कहते हैं, तब तक तुम आशीष पाओगे और वहां के फल का जो है आनंद उठाओगे। But something that is routine happening in the lives of the Israelites. पर एक ऐसी बात है जो मानो कि हमेशा रोजमर्रा के जीवन में जो उनके साथ हो रही है, They were leaving God and going towards all other false gods. तो वो क्या करते थे कि परमेश्वर को छोड़कर और दूसरे अन्य परमेश्वरों की ओर दौड़ते थे। And they were disobeying God's word और वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते थे and doing things which God hates. और वो चीजों को करते थे जो परमेश्वर को नापसंद थी। And every time they would do that, और जब कभी भी वो ये करते थे, God would give them, surrender them into the hands of the enemies. परमेश्वर जो है उनको जो है सौंप देता था उनके शत्रुओं के हाथों में। And then they would repent and turn to God. और फिर वो पश्चाताप करते और परमेश्वर की ओर बढ़ते। And this was happening as a cycle again and again. और ये मानो उनकी एक तरह की जीवन शैली बन चुकी थी कि बार बार ये होते जाता था उनके साथ। Then one day, और फिर एक दिन God was silent. परमेश्वर चुप हो गए। For 400 years, there was no prophet from God who could say, Thus says the Lord. और 400 साल तक ये कहने वाला कोई नहीं रहा कि यहोवा की ये वाणी है या And परमेश्वर ये Israel, कहता है। Israel and the Israelites believed that in these 400 years, there was no prophet, there was no move of the Holy Spirit in these 400 years. और इज़राइल के बीच में मानो किसी तरह की कोई हलचल नहीं परमेश्वर के द्वारा, और परमेश्वर बिल्कुल चुप्पी धरे हुए थे। But God promised comfort. पर परमेश्वर ने उनको जो है संभाला या उनको संभालने का एक वादा रखा। He said, I will comfort Israel. और वो कहते हैं कि मैं इनको शांति अवश्य दूंगा, I will comfort them. मैं इनको आराम जरूर दूंगा, I will comfort. मैं जो है इनको सांत्वना जरूर दूंगा। If you read Isaiah chapter 40 verse 1, और यशायाह के 40:1 में कहता है, Isaiah chapter 49 verse 13, और यशायाह के 49 और 13 में कहता है, and Isaiah chapter 57 verse 18, और 57 और 18 में कहता है यशायाह की किताब में, and finally Isaiah chapter 61 verse 2. और 61 और 2 में कहता है। I want us to read Isaiah chapter 61 verse 2. तो आइए यशायाह की ओर मुड़े और उसके 61वें अध्याय में पढ़ते हैं। Isaiah chapter 61 verse 2. और उसके दूसरे अध्याय में Chapter 61 verse 2. It says, The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. और यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंधुओं के लिए स्वतंत्र का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, क्योंकि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का और हमारे परमेश्वर को पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वाले को
शांति दूं। So God promised to comfort Israel तो परमेश्वर ने वादा किया कि वो उन्हें शांति देगा इज़राइल को, in the person of the Messiah. और उस व्यक्ति मसीहा के द्वारा। So the Jews believed, the Israelites believed, and even called Messiah as Menhem, comforter. और यहूदी लोग जो है वो विश्वास करते थे, इस वादे पे भरोसा करते थे, और उन्होंने परमेश्वर मसीहा को जो है शांति का दूत भी कहा, शांति देने वाला। So they were expecting Messiah will come and give us peace. और वो आएगा और वो हमें शांति देगा, He will comfort us. वो हमें जो है संभालेगा, धीरे He will remove all those enemies from our lives and give us peace. वो हमें उस आरामदायक जीवन में लेके जाएगा और शांति बनाएगा जहाँ पे शत्रु जो है हमारे निकट नहीं होंगे। Now here you see Simeon was waiting for the consolation of Israel. और फिर जब हम लूका के दूसरे अध्याय में देखते हैं शमौन के बारे में, वो इस इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, So he was waiting. और वो इंतजार कर रहा था। The first thing that we learn from Simeon's life, शमौन के जीवन से पहली बात जो हमें सीखने मिलती है, a godly life एक जीवन जो परमेश्वर की भक्ति की ओर है, waits. इंतजार करता है। A godly person waits. बाट जो होता है इंतजार करता है। Just like the Israel was waiting for redemption and consolation, जैसे कि इज़राइल जो है वो इंतजार कर रहा था, बाट जो रहा था उस शांति की। the whole world, especially the believers, are looking for that day where they will be delivered from these bodies, from this world, from the wickedness that is out there in the world. और जैसे कि इज़राइल बाट जो होता है, वैसे ही ये पूरी दुनिया बाट जोती है छुटकारे के लिए, शांति के लिए, इस शरीर से, दर्द से, दुख से। In Romans chapter 8, रोमियो के 8वें अध्याय में कहता from है, verse 18 18 पंक्ति में to 26, 26 पंक्ति तक, specifically from verse 22, और 22 पंक्ति में अगर विशेष करके it says, देखें तो, "For we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now, and not only the creation, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for the adoption as sons, the redemption of our bodies." रोमियो के 8:22 में कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती है और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहराते हैं और लेपालकपन होने का, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। And 24 says, "For in this hope we were saved. Now hope that is seen, not hope. For who hopes for what he sees? But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience." आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। Paul says, पौलुस ये कहता the है quality of the believer, the believer is characterized with this thing that he waits. कि वो विश्वासी का जो चरित्र है या उसके अंदर जो विशेषता है वो ये है कि वो इंतजार करता है, बाट जोता है। False teachers at the time of Peter, false teachers came in and they said, "Listen, Christ is not coming any longer anymore because everything remains the same. So don't bother about waiting for him. Do whatever you want, live as you want." झूठे शिक्षक जो है वो पतरस के समय में आके ये कहने लगे कि इंतजार क्यों करते हो, उसका आना अब नहीं होगा और वो जो है अब नहीं आएगा। You no need to wait. अब इंतजार करने की जरूरत नहीं Live है, as you want. जैसे कि और करो भी नहीं, Because the one who has promised, he won't come. क्योंकि जिसने वादा किया है वो अब नहीं आने वाला है, He will never come वो कभी नहीं आएगा, because he didn't come. क्योंकि वो आया ही नहीं। So do whatever you want. तो फिर जो चाहिए वो करो। One thing that characterizes a believer is that waiting. और एक चीज जो विशेषता बताती है एक विश्वासी के जीवन की, वो ये है कि वो बाट जोता है, इंतजार करता है। Waiting
with patience. कि इंतजार करता है धीरज धर के और धीरज से। Imagine Simeon in that temple, कि शिमोन के बारे में सोचो जो इंतजार कर रहा था उस मंदिर में बैठे, day after day, दिन प्रतिदिन, week after week, सप्ताह दर सप्ताह month after month. और महीने दर महीने He's patiently waiting. वो इंतजार कर रहा था, He's patiently waiting वो धीरज से इंतजार कर रहा था for the coming of the Messiah. कि परमेश्वर के आने की, मसीहा के आने की। What his life teaches us is that as we believers who has seen more than what Simeon had seen, we have seen the coming of the Lord, we have seen the death and resurrection of Jesus Christ, and we have seen 2000 years of history. तो शिमोन के जीवन से ज्यादा हमने जो देखा है वो उसका जन्म होना देखा है, उसका मरना देखा है, उसका पुनरुत्थान देखा है, और उससे कई ज्यादा हम देख चुके हैं। When I see we have seen जब मैं कहता हूं कि हमने देखा हुआ है, इसका मतलब through the eyes of the eyewitnesses, कि उनके द्वारा जिसने इस बात के गवाह थे जो लोग, उनके द्वारा and through the scriptures. और वचनों के द्वारा देखा हुआ Now है। what we do is we wait. तो फिर हम क्या करते हैं? हम इंतजार करते हैं। We wait patiently for his second coming. तो हम इंतजार करते हैं उसके दोबारा आने का, उसके दूसरे आगमन का। That's number one. We wait वो for him. पहली चीज है, हम इंतजार करते हैं। The second one that we see दूसरी बात जो हम देखते हैं in Simeon's life शिमोन के जीवन से, the second thing that we see is that we not only wait but we look forward to. पर सिर्फ हम इंतजार ही नहीं करते, पर हम आगे की ओर भी आशा रखते हैं। In verse 26, और 26 पंक्ति में, and it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. पवित्र आत्मा ने उसको वो चेतावनी दी हुई थी कि जब तक तू प्रभु मसीह को नहीं देख लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। And he came in the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him according to the custom of the law, he into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him according to the custom of the law, he took him up in his arms and blessed God and said, Lord, now you are letting your servant depart in peace according to your word. For my eyes have seen your salvation that you have prepared in the presence of all the peoples. तो 27-28 पंक्ति में जब यीशु को वो मंदिर में लेके आते हैं उसके माता पिता कुछ रीति रिवाज के अनुसार, और उस समय वो उसे गोद में उठाते हैं, और 29 पंक्ति में कहता है, हे स्वामी, अब तो अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। He was given a personal word from God. उसे एक व्यक्तिगत वचन मिला था परमेश्वर की ओर से। He was told by the Holy Spirit. उसे पवित्र आत्मा के द्वारा ये कहा गया था। And in Greek, the word is rhema. और वो शब्द जो यूनानी भाषा में इस्तेमाल होता है वो है रेमा। He was told that उसे ये कहा गया था until he doesn't see Christ, he won't die. कि जब तक वो मसीहा को नहीं देखेगा उसको मृत्यु नहीं प्रदान होगी। Some extra biblical narratives say that he was around 112 years. और कुछ जो बल्कि बाहर जो कमेंट्स है वो ये कहते हैं कि उसका जो उम्र थी या वो जो आयु थी उसकी उस समय की 112 वर्ष की थी, शिमोन की आयु उस समय। So he was told that Messiah is going to come. तो वो उससे ये कहा गया था कि मसीहा आने वाला है। So he was not only waiting but he was looking forward. पर वो केवल इंतजार ही नहीं कर रहा था, पर वो आगे की बातों को He was looking forward. वो इस बात के लिए जो आगे की ओर देख रहा था। And then he was patiently waiting and looking forward for the consolation of Israel. और वो इंतजार कर रहा था और वो जो है इस्राएल की शांति की बात जो रहा था। This teaches us the second thing. तो ये दूसरी बात को दिखाता है। We believers, हम विश्वासी, we not only wait,
हम केवल इंतजार ही नहीं करते, but we look forward to things to come. पर हम वो भी देखते हैं आने वाली चीजों के लिए जो These आने things वाली। to come is that his second coming. और वो आने वाली बात क्या है या आने वाली चीज क्या है कि उसका दूसरा आगमन। We not only look forward to the things to come, but we preach about it. पर हम उसका इंतजार ही नहीं करते या उसको देख ही नहीं रहे हैं वो आगे की बातों को, पर उसके बारे में प्रचार भी करते हैं और घोषणा भी करते हैं। But something that is interesting in these passages, और एक दिलचस्प बात जो यहाँ पे है वो ये है, when Simeon says, जब शिमोन ये कहता है Lord, now you are letting your servant depart in peace, कि वो कहता है कि अब तू अपने दास को जो है अपने वचन के अनुसार जाने देता है, विदा according करता to है, your word, अपने वचन के अनुसार, for my eyes have seen your salvation. क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। Now here you see, all that Simeon saw was Christ. और केवल यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज शिमोन ने देखी है, वो है मसीहा को। All he could see is the baby in his hands. वो सिर्फ यही देख पा रहा था उस छोटे बालक को अपने हाथों में। Believe in Christ, after our death, we'll go to heaven. कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि जब मैं मरूंगा और अगर मैं मसीह पे विश्वास करता What हूँ proof तो do you मैं have? स्वर्ग ही जाऊंगा? क्या इस बात का तुम्हारे पास प्रूफ है? Yesterday, we were doing outreach near Starbucks on the Carter Road. और कल जब हम कार्टर रोड्स पे स्टारबक्स के सामने आउटरीच कर रहे थे, And there was this lady. वहां पे एक स्त्री थी, And when I gave her the tract, और उस स्त्री को जब मैंने ट्रैक दिया, she took it and said, Yeah, I know this. और उसने कहा कि मैं जानती हूँ, Oh, that's interesting. और ये बहुत ही दिलचस्प है, तुम जानती हो। So she said, I not only know this, but I know X, Y, Z religions also. I follow all of them. और उसने ये कहा कि मैं यही नहीं पर बाकी भी जो धर्म कहते हैं उसके बारे में भी जानती हूँ। I said, that's interesting. तो फिर मैंने कहा ये भी दिलचस्प है। But how do you reconcile between those religions? तो पर तुम इन सब के बारे में या इन सब के बीच में कैसे फर्क या उनको कैसे मेल मिलाप करती हो उस बात का? Because they don't go along. क्योंकि इनमें जो है कोई भी एकता नहीं है या कोई भी And बात में एकता नहीं है। they are just opposed to each other. और कई बातों में वो विभाजन है उनमें, उन बातों में, उनकी She बातों said, में। I didn't know that. मुझे ये तो नहीं पता, उसने कहा I didn't know this. मुझे ये भी नहीं पता। Everything that I was saying, she said, I don't know that. पर I don't कोई know भी that. बात मैं कहता था उससे, वो यही कहती थी कि ये नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता। You know, it's all just whatever you believe. और फिर उसने कहा हाँ यही सब है जो अब मानते हैं। If you believe it exists, it exists. If you don't believe, it doesn't exist. अगर तुम मानते हो कि ये होता है तो ये होगा, अगर तुम नहीं मानते हो ये नहीं होता है तो नहीं होता है। So I simply said, there is a scooter over there. और यहाँ पे मैंने कहा कि एक स्कूटर है खड़ा है। Will my belief change its existence? मेरा मानना या न मानना उस स्कूटर का होना या न होने को तय करेगा? She said, no. नहीं। In the same way, there is a spiritual reality. और एक आत्मिक सच्चाई है। My belief doesn't affect it. और मेरा मानना या नहीं मानना उस बात को उसका नकार नहीं कर सकता। In fact, I need to believe what it is, and I need to believe in that existing thing. और इस बात पे जबकि मुझे ये विश्वास करना पड़ेगा कि वो है चीज और वो जैसी है वैसी ही है। So the question is, how do you know? पर सवाल यहीं पे आगे खड़ा होता है After कि death कैसे there is पता life. है तुम्हें कि मृत्यु के बाद जीवन है। People were questioning at the time of Paul. और लोग जो है पौलुस के समय पे ये सवाल पूछते हैं। Dead will not be raised. और मुर्दे जो है जिंदा नहीं होंगे। At that time, Paul said, पौलुस ने ये कहा, how come you people are saying that dead will not be raised? कि तुम कैसे कह सकते हो कि वो मुर्दे जिंदा नहीं होंगे? Because we witnessed the resurrection of Jesus Christ. क्योंकि हमने इस बात की गवाही दी है और हमने देखा है, हम सबूत है कि वो जिंदा हुआ है। And not just me, there are more than 500 people who have witnessed the death and resurrection of Jesus Christ. और मैं अकेला नहीं हूं, पर मेरे साथ 500 ऐसे और लोग भी हैं जो गवाह हैं इस बात के। If dead are not raised, अगर मुर्दे जिंदा ही नहीं होते, then Jesus didn't rise. और अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं हुए, पुनरुत्थित नहीं If हुए, Jesus didn't rise, अगर वो भी पुनरुत्थान नहीं हुए, we
believing in Jesus is of no use. तो फिर हमारा विश्वास करना व्यर्थ है। If the dead are not raised, अगर मुर्दे जिंदा ही नहीं होते, we shouldn't be sitting here. हमें यहाँ बैठने की जरूरत ही नहीं है। You shouldn't be listening to me. तुम्हें मुझे सुनने की जरूरत ही नहीं है। We shouldn't be having this play. हमें ये प्ले करने की जरूरत ही नहीं थी, Because there is life after death. क्योंकि जीवन है मरने के बाद। And Paul says, because Jesus is raised from the dead, क्योंकि मुर्दों में से जिंदा हुए हैं यीशु मसीह, पौलुस कहता है, that gives us foundation for our belief that there is life after death. वो मेरे विश्वास की नींव रखता है। So in a way, Paul is saying our belief in life after death is not based on false imagination, but on a historical fact. और ये केवल जो है मुर्दे जिंदा होते हैं, ये केवल मेरी एक कल्पना नहीं है, मेरी सोच नहीं है, पर उसके बारे में सबूत है चीजों का। So Simeon, all he saw was the baby Jesus, and he said, "Now I see the salvation of the Lord." शमौन के बारे में कि उसने जब उस बालक को देखा तो उसने कहा कि अब मैंने प्रभु के उद्धार को, छुटकारे को In the same way, the second thing that we learn from the life of Simeon is, दूसरी बात जो हम सीखते हैं, on the basis of what Christ has already done, we look forward for the things to come. और जिस चीजों को मसीह पूरा कर चुके हैं उनके आधार पर अब हम आने वाली चीजों के ऊपर आशा रखते हैं। The third thing that we learn, तीसरी बात जो हम देखते हैं, the second point, that we look forward for the things to come. कि हम आगे आने वाली चीजों की बात जो रहे हैं, देख रहे हैं। What are those things? वो क्या है चीजें? Christ is going to come again, कि मसीह दोबारा आने वाले हैं and all those who believe in him will stand along with him in that glory. और जो कोई भी इस बात पे विश्वास करता है, भरोसा करता है, वो उनके आने वाले समय में उनके साथ खड़े होंगे उनकी महिमा में। And there is a judgment coming. और वहाँ पे एक जो है न्याय आने वाला है। Those who do not believe in Christ, कि जो कोई भी मसीहा में विश्वास नहीं करता, they will be judged according to their own merit. और वो उनके ऊपर जो है न्याय किया जाएगा उनके खुद के कार्यों के अनुसार। Yesterday I asked a young man, और मैंने एक जवान व्यक्ति से ये पूछा कल, what do you think? क्या सोचते हो तुम Is this life all there is to live, and after death there is nothing? कि यही वो जीवन है जिसमें जीना है और उसके बाद कुछ नहीं होगा हमारे साथ? He said, no, I believe there is life after death. पर उसने कहा नहीं नहीं, मैं मानता हूँ कि मृत्यु के बाद और एक जीवन होगा। So I asked, what will happen to you? तो क्या होगा तुझे फिर उस जीवन He में? said, I don't know. तो उसने कहा मुझे नहीं पता। If my good deeds are good, I might have a better life. अगर मेरा जीवन अच्छा रहा, मैंने अच्छे काम किए अभी, तो शायद वो जीवन और अच्छा हो। So I asked him, are you a good man? तो फिर मैंने पूछा उससे, क्या तू एक अच्छा आदमी है? He confessed, this young boy confessed, no, I am not. और फिर उसने कहा इस बात का, उसने जो है अंगीकार किया या स्वीकार लिया कि नहीं, मैं तो एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ। So what would be the consequence, I said? तो फिर क्या लगता है तुम्हें, क्या परिणाम होंगे तुम्हारे इस जीवन I might end up having a bad life in the next. तो फिर हो सकता है मेरा जीवन उसके बाद वाले जीवन में बहुत खराब होगा। I told him, every religion talks about this, और हर धर्म इस बारे में बात करता है that sins will have consequences. कि पाप के जो है कुछ ना कुछ परिणाम निकल कर आएंगे। But there is one who came to save us, और पर एक है जो हमें बचाने आया है, is Jesus Christ. वो यीशु मसीह है। He came to save the sinners. वो आया है पापियों को बचाने के लिए, Not to say you are a sinner, वो ये कहने के लिए नहीं कि तुम पापी हो, because we all know that we are sinners. क्योंकि हम जानते ही हैं कि हम पापी हैं We need not know new information. और इसके बारे में और कोई नई जानकारी नहीं है ये बात में। But this is what the gospel message is. पर सुसमाचार का संदेश यही है Jesus came to save us. कि यीशु मसीह आए बचाने के लिए, And as a believer in Christ, कि एक विश्वासी होने के नाते we मसीह look का, forward to the things to come. कि मुझे आने वाली चीजों की ओर देखना है। There is third thing that we learn. और एक बात जो हम सीखते हैं सिमोन के जीवन से, When he says, Lord, now you are letting your servant depart in peace. जब वो कहते हैं कि तू अब अपने दास को जो है शांति पूर्वक जाने देता है। The interesting part here is that he said, now you are letting your servant depart in peace. कि तू अपने वचन के अनुसार शांति से मुझे जाने देता है, विदा करता है। Means Simeon is saying, now I'm ready to die.
तो अब शैतान ये कहता है कि अब मैं मरने के लिए तैयार हो गया, because I've seen you. क्योंकि अब मैंने तुझे देख लिया है प्रभु। The amazing portion here is the word peace. और जो अच्छी बात है यहाँ पे, या जो देखने की बात है, वो ये है कि उसने इस शब्द का इस्तेमाल किया, शांति से जाने। Lord, I'm not going to die in anxiety. कि परमेश्वर अब मैं व्याकुल होके नहीं जाऊंगा, I'm not going to die in uncertainty. अब मैं जो है ऐसे नहीं जाऊंगा कि आगे क्या होगा, I'm not going to die with confusion. अब मैं जो है उलझनों में नहीं मरूंगा, I'm not going to die with fear. मैं डर में नहीं मरूंगा परमेश्वर, Because I know you are the Savior. क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू उद्धार करता है। Now I can depart in peace. तो अब मैं शांति से विदा ले सकता I हूँ, can die in peace. मैं विदा ले सकता हूँ I शांति can से। face the death. मैं जो है उस मृत्यु का सामना कर सकता हूँ, I can look into the eyes of the death and say, where is your sting? और मैं उस मृत्यु की ओर देख के कह सकता हूँ कि तेरा डंक कहाँ पे रहा। I have an ailing father और मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, and doctors have given up. और डॉक्टर्स ने जो है उन पे आशा छोड़ दी है उस बात पे। And when just like few days back we came out of the doctor's cabin, कुछ दिनों पहले की बात है जब हम डॉक्टर के पास थे, और जब वहाँ से मैं बाहर निकला, my brother Mustafa looked at me and said, what are we going to do? मेरे भाई ने मुझसे कहा कि अब हम क्या करेंगे। I said, doctor is not God. मैंने कहा कि डॉक्टर तो भगवान नहीं है, वो या परमेश्वर नहीं है। Even if we die, we live. अगर वो इस मृत्यु से इस बीमारी से मृत्यु भी पाते हैं, So the departure of our father will not, yeah, maybe we will miss him, but it will not grieve us. और हम उनको जो है मिस करेंगे, पर वो जो है हमें पूरी तरीके से शोकित नहीं कर सकती वो बात, To the extent of hopelessness, कि इस बात में कि अब कोई आशा नहीं रही, because we are going to see him. क्योंकि हम उसे वापस देखेंगे। That's the blessed hope. और यही हमारी आशा है, And that's आशीषित the आशा। blessed hope of every person who believes in Jesus और Christ. यही एक आशीषित आशा है हम सब के लिए जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, That we can depart in peace. कि हम जो है विदा ले सकते हैं शांति के साथ। Not anxiety, हम व्याकुल होकर नहीं, not fear, डर में नहीं, not uncertainty, और इस बात में नहीं कि अब क्या होगा, not with questions, और सवालों में नहीं, but with this certainty. पर इस निश्चितता से Whoever believes in him will not perish, कि but जो have कोई everlasting उस life. पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, पर अनंत काल का जीवन पाएगा। I will close this with a quote from George Herbert. और जॉर्ज पोवेट के जो He was, कौन है उस समय? he was a poet, old English poet. और वो जो है कवि थे, एक अंग्रेजी थे। Death used to be an executioner. और मृत्यु जो है वो हमें खत्म करने वाली होती थी। Death used to be an executioner, but the gospel has made him just a gardener. और उसे जो है मृत्यु जो है वो हमें खत्म करने मौत वाली जो है एक वक्त पर वो जल्लाद हुआ करता था, मगर सुसमाचार ने उसे क्या बनाया? माली बने। माली बनाया, बगीचे का माली बनाया. So we don't face death with uncertainty, with fear, but we depart in peace. पर हम जो है ऐसे नहीं कि हम निश्चित नहीं आगे क्या होने वाला है, पर मौत में भी विदा लेते हैं शांति से। That's how we surrender. और इसी तरीके से हम समर्पित होते हैं, Surrender in hope, और समर्पित होते हैं आशा में, which is backed up by faith. और उसके अंदर जो है विश्वास लगा हुआ है। 3 points. 3 चीजें On this Christmas, इस क्रिसमस के दिन I want you to remember. याद रखना। Number 1, पहली बात we patiently wait. कि इंतजार करो, धीरज से बाट जो We परमेश्वर, wait because we have faith. कि हम इंतजार करते हैं, बाट जोते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक विश्वास है। Second, दूसरी बात, we look forward. हम आगे देखते हैं We चीजों look forward because we have faith. को, और हम आगे देखते हैं चीजों को क्योंकि हमारे अंदर विश्वास है। Third, तीसरी बात, we surrender हम जो है समर्पित होते हैं because we have faith. क्योंकि हमारे अंदर विश्वास है। Because He meant good and He means good. Oh. Everything He does in our lives, His intentions are good. We Because- surrender ourselves to Him. क्योंकि वो जो मेरे जीवन के लिए करता है, वो जो मेरे जीवन के लिए कर रहा है,
उसकी जो मनोभावना है मेरे लिए वो अच्छे के लिए है, भले के लिए है। That's the life of faith. और यही विश्वास का जीवन है। Amen. Amen. Let's pray. आइए प्रार्थना